اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت میں شفاعت بھی اللہ جل شانہ قبول فرمائیں گے اور اس سے ایمان والوں کو بڑا نفع پہنچے گا۔ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے: انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، پھر علماء، پھر شہداء ابن ماجہ۔ لیکن شفاعت وہی کر سکے گا جس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی، جیسے آیت الکرسی میں فرمایا: من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے جو اس کے دربار میں شفاعت کرے بغیر اس کی اجازت کے۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا: یومئذ لا تنفع الشفاعۃ عندہ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے اللہ نے اجازت دے دی ہو اور اس کے واسطے بولنا پسند کر لیا ہو۔ جس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہوگی وہی شفاعت کر سکے گا، اور جس کے لیے شفاعت کی اجازت نہ ہوگی اسی کے بارے میں شفاعت کرنے والے شفاعت کرنے کی ہمت کریں گے۔ کافروں کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت نہ ہوگی اور نہ کوئی ان کا دوست اور سفارش ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے: ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ مرقات شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن 5 طرح کی شفاعتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شفاعت حشر کے میدان میں جمع ہونے کے بعد حساب کتاب شروع کرانے کے لیے، جس کا ذکر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ تمام نبی اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے اور حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اگلے پچھلے مسلموں اور کافروں کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ دوسری شفاعت بہت سے ایمان والوں کو جنت میں بغیر حساب داخل کرانے کے بارے میں ہوگی۔ یہ سفارش بھی حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تیسری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے۔ یہ شفاعت حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے، اور آپ کے علاوہ مومن اور شہید عالم بھی ان کی شفاعت کریں گے۔ چوتھی شفاعت ان گنہگاروں کے بارے میں ہوگی جو دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ ان کو دوزخ سے نکالنے کے لیے نبیوں اور فرشتے شفاعت کریں گے۔ پانچویں شفاعت جنتیوں کے درجے بلند کرانے کے لیے ہوگی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کے پاس سے ایک قاصد نے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا: یا تو میں اس بات کو اختیار کر لوں کہ میری آدھی امت بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہو جائیں، یا اس کو اختیار کر لوں کہ اپنی امت میں سے کسی کے لیے بھی چاہوں شفاعت کر سکوں۔ اس لیے میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور یہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ چونکہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کا زیادہ نفع اسی میں سمجھا کہ ہر شخص کے لیے شفاعت کرنے کا حق لے لیں، اسی لیے آپ نے اسی کا اختیار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی، بس ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں وہ دعا مانگ کر قبول کرا لی، اور میں نے اس دنیا کو دنیا کی مانگ کر ختم نہیں کر دی بلکہ اس دعا کو قیامت کے دن تک کے لیے چھپا رکھی ہے تاکہ اس دن اپنی امت کی شفاعت میں اس کو کام میں لاؤں۔ بس میری شفاعت انشاءاللہ میرے ہر اس امتی کو ضرور پہنچے گی جو اس حال میں مر گیا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تھا۔ اس مبارک حدیث کے انداز سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی یہ عادت تھی کہ ہر نبی کو خاص طور پر یہ اختیار دیتے تھے کہ ایک دعا ضرور ہی قبول ہوگی،
चाहे कुछ ही मांग ले। यूं तो नबियों की हर दुआ कबूल होती ही थी, लेकिन ख़ास इजाज़ के लिए अल्लाह जल्ले शानू ने हर नबी को इख्तियार दिया कि एक बार तुम जो चाहो मांग लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह ख़ास दुआ हर नबी ने दुनिया ही में मांग ली। मैंने यहाँ नहीं मांगी, बल्कि क़यामत के दिन के लिए रख कर छोड़ी है। उसे अपनी उम्मत की सिफ़ात के लिए इस्तेमाल करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे इस किबले को मानने वालों में इतनी ज़्यादा तादाद दोज़ख में दाखिल होगी कि जिसका इल्म अल्लाह ही को है, और यह दोज़ख का दाखिला अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से और नाफरमानियों पर दुस्साहस करने और अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ चलने की वजह से होगी। बस मैं सजदे में पड़कर अल्लाह की तारीफ़ में लग जाऊँगा, जैसा कि खड़े होकर उसकी तारीफ़ बयान करूँगा। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि अपना सर उठाओ और सवाल करो, तुम्हारा सवाल पूरा किया जाएगा, और सिफ़ात करो, तुम्हारी सिफ़ात मानी जाएगी। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए सिफ़ात करता रहूँगा और अल्लाह मेरी सिफ़ात कबूल फरमाते रहेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि ए मोहम्मद क्या राज़ी हो गए? मैं अर्ज़ करूँगा कि ए रब मैं राज़ी हो गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह से रिवायत है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों के लिए क़यामत के दिन नूर के मिंबर रख दिए जाएंगे, जिन पर वे तशरीफ़ फरमा होंगे, और मेरा मिंबर खाली रहेगा। मैं उस पर इस डर से न बैठूँगा कि कहीं जन्नत में मुझे न भेज दिया जाए और मेरे बाद मेरी उम्मत शिफ़ात से महरूम न रह जाए। मैं अर्ज़ करूँगा कि ए रब मेरी उम्मत। अल्लाह जल्ले शानू फरमाएंगे कि ए मोहम्मद तुम अपनी उम्मत के बारे में मुझसे क्या चाहते हो? मैं अर्ज़ करूँगा कि उनका हिसाब जल्दी कर दिया जाए। चुनाचे उम्मत को बुलाकर उनका हिसाब शुरू हो जाएगा। नतीजे के तौर पर कुछ तो उनमें से अल्लाह की रहमत से और कुछ तेरी शिफ़ात से जन्नत में दाखिल होंगे। मैं सिफारिश करता ही रहूँगा, यहाँ तक कि जो लोग दोज़ख में भेज दिए गए होंगे उनके निकालने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे उनके लिखे हुए नामों की एक किताब दे दी जाएगी। यहाँ तक कि मालिक अलैहिस्सलाम दोज़ख के दरोगा मुझसे कहेंगे कि आपने अपनी उम्मत में से किसी को भी अल्लाह के गुस्से के लिए नहीं छोड़ा जो अजाब में पड़ा रहा चला जाता, बल्कि सबको निकलवा लिया। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़ात ज़रूर होगी, और हदीसों में जो कुछ आया है सब सही है और दुरुस्त है, लेकिन सिफ़ात के भरोसे पर भले काम न करना और गुनाहों में पड़े रहना बड़ी नादानी है। यह तो सिफ़ात की हदीसों से ही मालूम हुआ, और आगे जाने वाली हदीसों से भी यह बात साफ़ हो जाएगी कि इस उम्मत के आदमी बहुत बड़ी भारी तादाद में दोज़ख में जाएंगे। दोज़ख में आने और फिर कितनी मुद्दत अज़ाब भुगतने के बाद शिफ़ात से निकलना होगा, यह खुदा ही बेहतर जाने। अब कौन सा गुनाहगार और नेक अमल खाली यह कह सकता है कि मैं दोज़ख में हरगिज़ न जाऊँगा और बेअज़ाब व हिसाब जन्नत में पहुँच जाऊँगा? कोई भी यह दावा नहीं कर सकता। फिर गुनाहों पर ज़ुर्रत करना और नेकियों से खाली हाथ रहना कौन सी समझदारी है? इन्हीं सफ़ों में अभी करीब ही में गुजर चुका है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलाम ने फरमाया कि हमारे इस किबले को मानने वालों में से इतनी बड़ी तादाद दोज़ख में दाखिल होगी कि जिसका इल्म अल्लाह ही को है, और यह दोज़ख का दाखिला अल्लाह की नाफरमानियों और नाफरमानियों पर ज़ुर्रत करने और खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ करने की वजह से होगा। हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़ात उम्मत के लिए
रहमत होगी और आपके तुफैल में आपके बहुत से उम्मतियों को भी शिफात करने का एजाज़ मिलेगा। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिला सुबह मेरी उम्मत के कुछ लोग पूरी जमात के लिए शिफात करेंगे और कुछ एक कबीले के लिए और कुछ लोग उसबा के लिए और कुछ एक शख्स के लिए सिफारिश करेंगे, यहाँ तक कि सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। और एक हदीस में है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के एक शख्स की सिफात से कबीला बनु तमीम के आदमियों से भी ज़्यादा जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों के रास्ते में दोज़ख में जाने वालों की लाइन बनी खड़ी होगी। इसी बीच एक जन्नती वहाँ से गुजरेगा। दोज़खियों की लाइन वालों में से एक शख्स उस जन्नती से कहेगा कि ए साहब, क्या आप मुझे पहचानते नहीं? मैंने आपको दुनिया में एक बार पानी पिलाया था, इसीलिए मेहरबानी फरमाकर मेरी शिफात कर दीजिए। और दोज़खियों की इन लाइन वालों में से कोई गुज़रने वाला जन्नती से कहेगा कि मैंने आपको वज़ू का पानी दिया था, मेहरबानी फरमाकर शिफात कर दीजिए। चुनाचे जन्नती शिफात करके जन्नत में दाखिल करा देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।